अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, देहात में चावल की कटाई और गंदम की काश्त का सीज़न चल रहा है और वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से गाँव की पंचायत चलते हैं और वहाँ मालूम करते हैं कि इस हवाले से क्या बातचीत हो रही है। चौधरी साहब गल ये कि बड़ा अरसा ही हो गया तुसां पिंड च कोई गेमां शेबां खेडां खूडां नहीं कराइयां। आवे हुण आ जदों मौसम बदलदा ही ते वड्डे चौधरी साहब ते लाला लाला कर दिंदे हन पिंड च। उन्हां फौरी तौर ते कदी कौडी दे टूरनामेंट कराउणे, कदी आ खाड़ा खोद के देसी कुश्तियां शुरू करा देनियां, कदी ओ नेज़ेबाजी दे मुकाबले कराउंदे हन, कदी बालां दियां दौड़ां लवाउंदे हन, कदी बैल दौड़दे सन, कदी बैल दियां दौड़ां हुंदियां हन। मैनूं याद है जदों ये जिद बड़ी फिर करदा ही मैं भी इन्हां च दौड़ना फिर वड्डे चौधरी साहब ने इहनूं चेता कराना कि तेरा पिंडा उन्हां नाल रलदा है, उंज तूं इनसान है। ते मेरा मतलब है कि ते हुण तुहानूं वेख के चेता आया बटेरियां दियां लड़ाइयां बड़ियां कराउंदे हन, कुक्कड़ां दियां लड़ाइयां होणियां। तुही ते बिल्कुल ही हुण कोई ढेरी ढाह छड्डी है। ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਲੈ ਬਈ ਰਹਿਮਤੁल्ला, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਵੇਖ ਲੇਗਾ? ਲਓ ਵੇਖਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੋੜਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਓਲੇ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਭਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲੀ ਲਾਣ ਡੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ। ਨਾ ਨੈਮਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। 10,000 ਵਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਥਣੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਨਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਬਾਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਇਆ ਫੌਰਨ ਹੀ ਬੇਦੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਦੀਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੋਕ ਦੀ ਹਵਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣਿਆ। ਓਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਣਿਆ ਨਾ ਅੰਗੀਠੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਲਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣੂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਧੱਦ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨੀਰੀ ਧੱਦ। ਬਲਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਿਓ ਧੱਦ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਧੱਕ। ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਸੈਂ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੁਗਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੁਕਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਝਲੂੰਗੀ ਚ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਹੀ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਘਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਭੁੱਟੋ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੀ। ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ,
ਆਬੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਕੇ ਆਬੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਨੰਗ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੋਰ। ਹੈਗਾ ਮੋਰੀਏ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੰਸ ਮੋਰ ਰਾਣੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਲਾ। ਲੱਟੇ ਦੀ ਚਾਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾੜੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਾਦਾਂ ਨੇ। ओ भाई एक मिनट, अभी आप गांव में खेलें कराने की बात कर रहे थे और अब आप आपस में लड़ रहे हैं। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਵਧੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ। ਉਹ ਚੌਰੀ ਜੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਨਾ। ਅਲੀ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿੱਦੜ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਗੱਭਰੂ ਆ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਡਮਰੂ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੋਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ जी ਇਹ ਰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਆ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੁ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੁ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦੇ ਭੱਜੇ ਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨਾ ਅਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਉਹ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੁਝਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲੈਣ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-3 ਦਾਣੇ ਹੀ ਖਚਖਾਸ਼ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰੀ ਜੀ ਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਧੋਣੇ ਜੇ। ਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਭਾਂਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਣਾ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਭੰਨੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਰਾਣਾ ਅਗਲਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਚੌੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਪਤਾਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੈ ਜਾ, ਕਪਤਾਨ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਉੱਠਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ। ਚੌੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਓਏ ਛਜਾਦੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਦਰਾਹਟ ਦੀ ਪੱਗ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਕਬੱਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਲੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਡੇ ਨੇ ਆ ਕਿਰਲੇ ਦੌੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖੇ ਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। अच्छा जी,
ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਫੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਗਈ ਏ ਓਹ। ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੂਹਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। क्या बात। ਬਾਊ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ। जी जी सुनाएं, क्यों नहीं, मैं आप ही को सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੱਲੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਉੱਥੇ ਚਮਕੀ ਪਈ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਟ ਜਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ। ਰਾਣਾ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਫੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜੂਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੰਜੂਏ ਦੇ ਫੌਰਨ ਕੰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜਾ। ਹਾਏ 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 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਵੇਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਰਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਨੂੰ नजर ही ना आए। चौधरी साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? अगर आपके पास कबड्डी का ऐसा ऐसा कारीगर मौजूद है तो फिर रखें टूर्नामेंट। ठीक है बाऊ अली जी, जे तुसी भी इसरार करते हैं ते अगले महीने रख लेने कबड्डी का टूर्नामेंट। ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਛੇਡਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਭੜੋਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੜੋਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਕਣਕ ਚੱਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਏ। ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਕਣਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 3500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਬੀਜੋ ਕਣਕ। राणा, ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 4200 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਏ? ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਧਰੂ ਕੇ ਸਿੰਧ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੀਜਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਵੀਏ? ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਿਸ ਏ। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा है। हुकूमतें तो अपनी सियासी दुकान चमकाती रहती हैं, उनको तो अपनी सियासत से मतलब है। आप माशाल्लाह किसान हैं, आपका तजुर्बा है, आप अपनी अकल समझ बूझ के मुताबिक काम कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਜੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਪੈਲੀ? ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਏ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲਾ ਲਊ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਣ ਦਈਏ, ਰੋਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮਰਾਦਾ, ਅਕਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਹੀਂ ਬੰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਘੋੜੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ੋਖਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਸੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾਰਾਰੀ ਭੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨੀ ਭੰਗੂੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਭੰਗੂੜਾ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਰਾਣਾ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਉਤਲੀ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਥਲੜੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹਵਾ। ਆ ਧੌਣ ਪਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਅਸ਼ਰਫ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਦੀ ਵੀ।
ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਦਾਂ ਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ। ਹਾਏ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਡਣ ਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਦੂ ਆਲਾ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ। बिल्कुल ਯਾਰ ਨਹਿਮਤੁੱਲਾ, ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਲਓ ਉਹ ਚੌਰੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਨੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਪੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਾਤ? ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਯਾ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ, ਚਵਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਚ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਟਾਸ ਹੋਈ ਜੇ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਿਸਬਾਲ ਹਕ ਨੂੰ ਟਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਪਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਠੀਪੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਖਿਦਮਾਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਠੀਪਾ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਪਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ 1000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਐਡੇ ਮਟਨ ਪੁਲਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਮਟਨ ਪੁਲਾਅ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। और राणा साहब जल्दी आओ, अपना वेड़ा रस्सी तोड़ा के नस गया जे। ਹੈਂ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਦੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਪੰਗੇ ਵਹਿੜੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਰੱਸੀ ਤੁੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਤੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? मैं कीती सी, फिर चरीटां ते डर तो मैं खलो गया, ओने मैनू भी तरू के नाल ले जाना सी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਏ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੱਝ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਓਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਓਏ। ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਬੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਡ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਛਾਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਮਿਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 7 ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत हो चुकी। अगर इस कौम को यही नहीं पता कि दानिश्वर की क्या वैल्यू होती है तो फिर खिलौना की तो बहना की बस ठीक है। हद हो गई है यार, हद हो गई। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन ओ प्यारे, उधर क्या कर रहे हो? इधर आकर खड़े होकर सुनाओ ना। नहीं सर, बहुत हो चुकी है, बहुत हो चुकी। अगर इस कौम को यही नहीं पता कि दानिश्वर की क्या वैल्यू होती है तो फिर खिलौना की तो बहना की बस ठीक है। हद हो गई है यार, हद हो गई है। एक दानिश्वर आदमी, एक सीनियर जर्नलिस्ट आपके सामने हूँ, तो भाई साहब क्या फरमाइश कर रहे हैं? क्या? कि जेम्स बॉन्ड बड़े दिन हो गए हैं, खबरनामे में तुमने डांस नहीं किया। यार इतना आग भगोला होने की क्या जरूरत है? पब्लिक की डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो पब्लिक डिमांड उससे करे ना जो उससे मुतल्लिका लोग हैं। एक सहाफी को तुम कह रहे हो डांस करो, ऊपर से ये थैला साहब अजीब अजीब जुगते लगाते, कहते उधर खड़े हो गए ऐसे लगता है कि तुम दवाई लेने आए हुए। इसलिए सर बैठ के जो है आपको पेश कर देता हूँ। नहीं, अखबार तुमने इस तरह ही पकड़ा होता था जब रिपोर्टर पढ़ी ने। नहीं, मैंने पढ़ लिया खबर भी, अखबार भी रहने दें आप। पर जेम्स बॉन्ड, मुझे तो तुम्हारी यहाँ से वहां तक की वॉक पसंद है। और यार लो देखो ना यार, वही बात होगी ना, वही बात होगी ना। वो अपनी तरफ से कैट वॉक कराने बैठे हुए हैं। बात ये है कि आज की खबर ये बड़ी अजीब सी है और
हंसी भी है उसमें अच्छा। और फिक्रमंदी भी है कि हम लोग वहीं के वहीं बैठे हैं जहां पहले दिन बैठे थे। आपको मालूम होगा कि मुर्तजा वहाब साहब जो हैं मेयर कराची, इंतहाई डिसेंट लड़के हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह गुफ्तगू भी अक्ल वाली करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देखे जरा ये जिन्होंने कराची के इलाकों के नाम रखे थे उन्होंने जो नीले पीले लाल गुलाबी नाम रख दिए हैं और हम उसी पे गुजारा करते जा रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो नामों के हवाले से उन्होंने की है, हंसी वाली बात ये है कि नागन चुरंगी में बैठ के की है। मतलब नागन चुरंगी देखो ना क्या नाम हुआ है, नागन चुरंगी। हाँ वाकई कई बड़े बड़े अजीब नाम है हमारे इलाकों के। जी जी, कराची में तो हद ही हुई पड़ी है ना। देखो ना जरा क्या नाम है, कंवारी कॉलोनी, अचानक मोड़, नागन चुरंगी, अंडा मोड़, डिस्को मोड़। यार खुदा के लिए ये कौन से नाम हैं? इतनी देर हो गई है हमें पैदा हुए हुए, आई मीन आयाद हुए हुए, ना ही बदल लो। नाम तो कोई ऐसे रखें जिसे सुन के तो बंदा शर्मिंदा तो ना हो, या बेचारा वहां का रिहायशी बताते हुए तो ना चेंप रहा हो। अब ये जो कंवारी कॉलोनी है इसमें तो नाम से लगता है कि शादीशुदा जोड़े को मकान ही नहीं मिलता होगा। अचानक मोड़, क्या नाम हुआ है, अचानक मोड़। मोड़ अचानक आएगा तो फिर रक्षा ही उल्टेगा ना। भाई ये अचानक मोड़ क्या हुआ? मोड़ वैसे तो आराम से ही आता है ना, किलोमीटर पहले ही बंदे को पता होता है कि भाई जी आगे मोड़ आ रहा है। अचानक मोड़, डिस्को मोड़, ये तो पढ़ के लगता है कि यहाँ हर वक्त म्यूजिक ही चलता हो। बिल्कुल। और वहीद मुराद साहब की तरह लोग उधर थिरकते ही रहते हो। अंडा मोड़ तो चलो समझ आती है कि वहां पे कहीं अंडों की दुकान होगी या गर्म अंडे वाले वहां पे ज्यादा उतरते होंगे, उनका आखिरी बाश स्टॉप होगा, या अंडे लड़ाने जाते होंगे उधर लोग। आपको पता है अंडे लड़ाना एक गेम है बाकायदा। यस, जो ज्यादा बलोचिस्तान में खेली जाती है। अच्छा। कोई ऐसा होगा चलो अंडों वाला वाकया, मगर फिर भी अंडा मोड़ भी मुझे नाजुक मोड़ लगता है। अंडा मोड़ पे किसी का मोटरसाइकिल अगर स्लिप हो जाए तो अंडा ही टूट जाए। यानी है कोई नाम रखने वाला अंडा मोड़? आगे चल के इस हिसाब से तो नाम बनता है ब्रेड मोड़, आगे हो बटर मोड़, उसके बाद हो जैम मोड़। अगले कहें भाई जी असी नहीं इस इलाके च रहिंदे, सानू पसंद नहीं, असी पराठा कॉलोनी रहने। अजीजी ये ब्रेकफास्ट इलाके के बाद लंच इलाका भी आता है? हाँ जी हाँ जी, ये ब्रेकफास्ट इलाका खत्म होता है तो आगे आ जाता है ना जी दूध पत्ती मोड़। उससे आप खब्बियात हो जाएं तो उतनी देर को दोपहर हो जाती है, फिर लंच मोड़ आ जाता है। सही इजहार अफसोस किया है मुर्तजा वहाब साहब ने। अब देखो जरा जमात इस्लामी के रहनुमा जो प्रोफेसर गफूर अहमद मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन, उनके नाम से मंसूब सड़क को उनके नाम की जगह परफ्यूम चौक कहा जाता है। हालांकि वो प्रोफेसर साहब के नाम से मंसूब है, मगर अभी भी उसका नाम परफ्यूम चौक है। इसी तरह लियाकत अली खान के नाम से मंसूब करके जिस इलाके का नाम लियाकताबाद रखा गया, वो आज भी पुराने नाम लालू खेत से ही जाना जाता है। लालू खेत। यार इसका नाम आपने लियाकताबाद रखा हुआ है, लियाकत अली खान साहब मरहूम के नाम पे ये नाम है। अब जाने दें, अभी भी लालू खेत लालू खेत लालू खेत जा रहे हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? लालू खेत जा रहा हूँ। अरे कहाँ रहते हो? मैं तो लालू खेत रहता हूँ। अरे भाई लालू खेत जा रहे हो? हाँ लालू खेत जा रहा हूँ। लो मैं समझा पता नहीं लालू खेत जा रहे हो। इसी तरह आप देखें कि इलाका है लांडी। लांडी सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है छपनुमा झोंपड़ी। अब वहां पर क़याम पाकिस्तान से पहले झोंपड़ियां थी तो उसका नाम लांडी पड़ गया और अभी तक उसे लांडी कहा जाता है। जी जी, उसी का एक इलाका है मुजफ्फराबाद। अच्छा। अब जो मुजफ्फराबाद है वो सरकारी कागजों में तो बन गया हुआ है, लेकिन उसका नाम जो मशहूर है, जुबान ज़दे आम है, वो भला क्या है? क्या? गीदड़ कॉलोनी।
अब मेरा अपना ख्याल है कि जब यहाँ पे आबादी नहीं होगी तब वहां पे को गिद्दड़ शिद्दड़ होंगे। लेकिन जब आबादी हो गई तो गिद्दड़ों में ऐसा कौन सा आइंस्टाइन गुजरा है या सिकंदर आजम गिद्दड़ गुजरा है जिसके नाम पे आपने वो नाम रखा हुआ है गिद्दड़ कॉलोनी। बस करो, अब वहां पे आबादी है, उसका नाम को अच्छा सा चुन के रखो यार। बिल्कुल। बड़े बड़े नामवर लोग और बहुत बहुत बड़े लोग हुए हैं कराची में। बिल्कुल जी 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 बहुत बहुत प्यारे शायर अदीब हुए हैं, बहुत बहुत बड़े राइटर हुए हैं। बड़ा शहर हुआ पाकिस्तान का। क्या बात है। तो आप इस तरह के नाम जो मजाहिया हैं खुदा के लिए आप बदल लो। हाँ। ये है नाम गीदड़ कॉलोनी और मुजफ्फर वहां पे रिहाइश पजीर हो तो कितना बुरा लगेगा। आय 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 आय। बल्कि इसको तो सूट करेगी यार वो कबूतर। यार सूट क्या करेंगे, लोग छेड़ेंगे कि इसी की वजह से इसका नाम है गीदड़ कॉलोनी। आपको पता है मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास एक चौक है, उसका क्या नाम है? क्या जी? बब्बर शेर चौक। या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर करे। बब्बर शेर मुंह खोले ना तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ तगड़ा दंद खलोता हूं। जेम्स बॉन्ड, कराची में एक इलाका है जिसका नाम गोली मार है। बंदा नाम लेता हुआ भी डरता है। यार है बंदा नाम दसन दिया आवे गोली मार, अगला पिस्तौल कट के मार दे। ओ मैंने अपने घर का एड्रेस बताया था। जेम्स बॉन्ड कराची में एक इलाका है जिसका नाम है कटी पहाड़ी। जी, कटा केक तो सुना है या कटी सब्जी तो सुनी है, कटी पहाड़ी पहली दफा सुनी। मतलब अजीब और गरीब नाम। जेम्स बॉन्ड कराची में तो स्कूलों के नाम ऐसे हैं कि सुनकर हंसी निकलती है। अब आपने कभी नहीं सुना होगा स्कूल का ऐसा नाम जैसा कि सफेद स्कूल, पीला स्कूल, खट्टा स्कूल। हाँ जी, जो नाम जुबान पे चढ़ गया वही रख लेंगे। या फिर शायद पहले हाथ स्कूल का सफेद गेट नजर आ गया तो बस वहीं से मशहूर हो गया सफेद स्कूल। या को पीले रंग का बैनर लगाया उन्होंने ऊपर कि स्कूल खुल गया है, उन्होंने तो ना पीला स्कूल रहता। लगता है कराची के लोग मसरूफ ही इतने हैं कि पहली नजर में जो दिखाई दे दे बस वही जगह का नाम करार दे दिया जाता है। इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ना जाया करेंगे इसका क्या नाम हो। वैसे तो लाहौर में भी बड़े अजीबोगरीब नाम हैं। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी जगहों के नाम हैं जैसे छोटा सांदा, बड़ा सांदा, गंजियां वाली घाटी, लाल पुल, जोड़े पुल, दो मोरिया पुल, एक मोरिया पुल, अन्ने वाला मोड़। देखो ना यार, उतो मोड़े थे तो अन्ना कर देते सीधा तू चलो जाई जाए अन्ना बेचारा, उन्हें मोड़ उते ले आके ते अन्ना करता। मेरा मतलब है हर जगह होते हैं अजीबो गरीब नाम, मगर कराची ने तो हद ही कर दी है। बिल्कुल सर। अपने सड़कों के, अपने इलाकों के, चौकों चौराहों के नाम ऐसे ऐसे रखे हैं कि वाकई सुन के अजीब सा लगता है। जैसे हमारे पख्तून भाई जो है ना जी, उनके अपने नाम जो होते हैं वो बड़े बड़े अजीब होते हैं जी। वो अमानुल्लाह खान मरहूम क्या करते थे कि जब बच्चा पैदा होना जी हमारे पख्तून भाइयों के घर, हाँ जी हाँ जी। तो उनको जो पहली चीज नजर आए उसी का नाम रख लेते। समुद्र खान, दरिया खान, पहाड़ खान, कड़क खान, जबरदस्त खान। ये क्या नाम हुआ सर? भाई ये जो हमारे डॉक्टर ताहिर शहीर साहब हैं, हाँ जी हाँ जी। एफसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो बाखुदा बता रहे थे कि मेरे एक स्टूडेंट का नाम था जबरदस्त खान। अच्छा। मेरा एक दोस्त है उसका नाम है मोहब्बत खान। वाह। चलो ये तो कोई प्यार करने वाला नाम लगता है हाँ ना। जी। जबरदस्त खान। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है बर्दाश्त खान। नहीं, वो जो तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें बर्दाश्त करता है उसका नाम बर्दाश्त खान नहीं होना चाहिए। अच्छा, जेम्स बॉन्ड कराची में सिर्फ जगहों के नाम ही अजीबोगरीब नहीं है बल्कि नंबरों वाली जगह भी बड़ी मशहूर हैं। हाँ देखे ना जरा, जैसे कुरंगी 2.5 नंबर, लांडी नंबर 6, न्यू कराची 5 नंबर, लालू खेत 10 नंबर। हाँ ये नाम है वाकई। अच्छा। हाँ 2 मिनट चुरंगी, लांडी 3.5। अच्छा, फिर नाम रखने वालों ने सिर्फ गिनती नहीं पुठी सीधी की, पहाड़ियों तक भी वो पहुंचे। अच्छा। हाँ हाँ, पहाड़ा देख लो ना, बंगी पहाड़ा, बंगाली पहाड़ा, पटेल पहाड़ा। एक इलाके का नाम है गुजरनाला। और यार क्या बात कर रहे हो, दुनिया भर में है अजीबोगरीब नाम।
हाँ हाँ, जैसे अमेरिकी रियासत जो है ना जी कोलोराडो, हाँ जी, हाँ जी। उसके एक कस्बे का नाम है नो नेम। हैं? नो नेम, कोई ना नहीं, नो वाह। नहीं। वाकई नो नेम। मैं सोचता हूँ कि आगाज में इसके बड़े आपस में लड़ पड़े होंगे। हाँ, वो कहता होगा मैंने नाम रखना है, वो कहता होगा मैं रखूंगा, नहीं मेरे वाला नाम होगा। अखीर फिर किसी सियाने ने क्या होगा, यार गल सुनो, हाँ। तुसी आपस में ना लड़ो, इस इलाके का नाम रख लेते हैं नो नेम। यार इसी तरह नॉर्वे में एक जगह का नाम है ओ। अच्छा। ओ जी हाँ, ए और ए के साथ उन्होंने अपनी जुबान में कुछ लिखा हुआ है जिससे वो फिर ओ कहलाता है। हाँ। बहुत अच्छे, यानी ए ही हुआ ना। हाँ। वहां की किसी खतून ने अपनी बंदे को आवाज दी होगी ना, ए जी सुनते हो, जेड़ा ना रखन दे उन्हें कहा यार ही ना रहा ले ए। इतनी कंजूसी नाम रखने में, ये क्या नाम हुआ ओ। मुझे लगता है उस इलाके में नॉर्वे की शेख बरादरी रहती है। उन्होंने सोचा होगा कि यार ज्यादा खर्चा ना करो, बस और रख लो। अच्छा, एक अमेरिकी रियासत के कस्बे का नाम है नॉर्मल। लो, यानी सिर्फ वो नॉर्मल है, हाय हाय ਉਹ ਬਾਕੀ इर्द गिर्द वाले लोग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ पागल रहन डे हैं ਇੱਥੇ। मेरा बड़ा दिल करता है कि गोगे को उधर भेज दिया जाए, इनका नाम तो खराब करें। गोगा उस इलाके च फिरदा होवे ते फिर लोग कहन यार फिटे मुंह ए केड़ा नॉर्मल है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के एक गांव का नाम है रोटन एग, यानी गंदा अंडा। है को नाम गंदा अंडा? हाँ जी। कौन बेचारा किसी को बताया कि जी असी गंदे अंडे होने हैं जी। होंगे ना बंदा कहता जी असी मॉडल टाउन होने हैं जी। सीधी सीधी बिस्ती है ना। हाँ जी बिल्कुल। ये कौन ने जी, ये गंदे अंडे वाले ने। ब्याह ते लोग पूछन डे होंगे और बरात तुरन वाली हो गई है, गंदे अंडे वाले आए ने कि नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्जरी करने वाले डॉक्टर आऊंगा बाऊंगा। वाह जी वाह, आऊंगा बाऊंगा कम और डोंगा ज्यादा लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, फैशन और शोबिज इंडस्ट्री में खूबसूरत नजर आने का रुझान पाया जाता है, लेकिन अब खूबसूरत और नौजवान दिखने के लिए आम लोगों में भी सर्जरीज करवाने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। जी। एक ऐसी खातून है जिन्होंने 400 सर्जरीज करवाई हैं, लेकिन वो अब भी अपनी खूबसूरती से मुतमईन नहीं है। हाय। यस, इसीलिए तो लोग मुझे सर्जरी क्वीन कहते हैं। आम लोगों ने इतनी दफा अपना चेहरा धोया नहीं होगा जितनी दफा मैंने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई है। हाय। बेस्ट कर दो, बेस्ट कर दो। और कितनी सर्जरी करवानी है? इन हाथों ने तुम्हारी इतनी सर्जरी कर दी है कि अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। वाह 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 वाह, आपकी बर्दाश्त खत्म हो गई है और उसका मुंह खत्म हो गया। ये भाई साहब कौन है जी? ये है मेरे सर्जरी करने वाले डॉक्टर आऊंगा बाऊंगा। वाह जी वाह, आऊंगा बाऊंगा कम और डोंगा ज्यादा लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਰਜਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। इंसल्ट, माय इंसल्ट। ना की। एक साल लगता है टाइम लेने के लिए मुझसे। डॉक्टर प्लीज, इन लोगों को आपका क्या पता हो। हाय। तो बीबी 400 दफा सर्जरी करवाई है, इतने क्यों पैसे जाया कर रही हैं? एक ही दफा आप मुंह मिटा के नवा क्यों नहीं बनवा लेती? देखिए मिस्टर, ये सर्जरी मेरी जरूरत नहीं, अब मेरी आदत बन चुकी है। मेरा तो दिल करता था कि मैं क्रिकेट की दुनिया में जाऊं, मेरा वो ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ। मैंने फिर सोचा क्यों ना सर्जरियां करवा करवा के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दूं। वो 400 सर्जरियां, ये तो बड़ी स्पीड में आपने करवाई हैं। मेरा ख्याल है स्पीड में अब आप शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रही। 400 सर्जरी यार, हद हो गई है। हाय। ये तो मुझे लगता है घर से सूट लेने जाती हैं तो रास्ते में इनका मूड बनता है सर्जरी करा ली। या ऑफिस में ब्रेक होती है तो कहती हैं ब्रेक खत्म होने तक मैं सर्जरी करा दी। या कहीं ट्रैफिक फंसी होती है तो ड्राइवर को कहती हैं कि जब तक ट्रैफिक नहीं खुलती मैं जरा सर्जरी करवा लूं। अली साहब, ये किस कंट्री से है खपती खतून? हाय। गोगा साहब, जनूबी कोरिया से हैं ये खातून,
और गुज़श्ता 15 साल में 400 कॉस्मेटिक सर्जरीज पे $2,10,000 अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुकी हैं। हुए 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 देखिए जी, मुझे ये सर्जरी करवाने का शौक तो नहीं था, वो पेपरों के दौरान टेंशन की वजह से मैं खाती इतना रही कि फूल के कुप्पा हो गई। फिर मुझे अपना वजन कम करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी। हाय क्यों करती रही हो अपने आप पे जुल्म? अगर मोटी हो गई थी तो शादी के लिए कोई मोटा लड़का ढूंढ लेती। हर हफ्ते पहुंच जाती है मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। कहीं तो इसने एडवांस बुकिंग करवाई हुई है कि किस वक्त इसका सर्जरी का मूड बन जाए। हाय वे कच्छू कुम्मिया, तू नहीं टाइम सिर सर्जरी करदा ते तां एडवांस बुकिंग करवाई है ना। ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? सही कहा है आपने, मेरी तो आवाज इतनी सुरीली थी कि सारे लोग मुझे कोयल कहते थे। फिर इस कमबख्त डोंगे बोंगे ने सर्जरी के दौरान पता नहीं क्या किया, मेरी आवाज मर्दाना हो गई। 2-3 सर्जरियां और कराओ, दोबारा कोयल बन जाओगे। करवाई है तो ये थोड़ा सा नसवानी टच आया है, वरना मेरी आवाज तो अमरीश पुरी वाली बन गई हुई थी। तो फिर जाना कर देना था इस डॉक्टर पर। सोचा तो यही था, फिर ये समझ के छोड़ दिया कि मेरे मुंह को सबसे ज्यादा यही समझता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 सर्जरियां की हैं इन्होंने आपकी, अब तो ये आपके मुंह के मिस्त्री बन चुके होंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, गिल्ली वोन साहिबा, ये तो बताइए। सर जी क्या नाम बताया आपने? गोगा जी, गिल्ली वोन। गिल्ली वोन गोगा जी, जितनी सर्जरियां ये कराती हैं ये हर वक्त गिल्ली गिल्ली रहती हैं। अच्छा जो गिल्ली वोन साहिबा, ये बताइए कि आपने पहली सर्जरी कब करवाई थी? हाय बताया तो है, कॉलेज में इम्तिहानात के दौरान टेंशन की वजह से मैं मोटी हो गई थी। मेरी क्लास फेलो भी मेरा मजाक उड़ाती थी, हत्ता कि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे तनकीद का निशाना बनाता था। हाय फिर मैंने अपने इश्क की खातर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। वाह वाह वाह, इसकी खातर अगर आप फायर खा लेती ना तो फिर भी आपने इतना ही मशहूर हो जाना था। ओए अकल को हाथ मारो गैर मुल्की खोते, तू मेरा क्लिनिक बंद करवाना है। अली साहब 400 सर्जरियां, ये तो वाकई ढाके बनाने वाली गल हो गई। जी बिल्कुल गौरी साहब, इतनी सर्जरियां कि क्या बताऊं। अब आप सुनते जाएं और गिनते जाएं। पेशानी की सर्जरी, कानों की सर्जरी, पलकों की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, नाक की मुताद्दिद सर्जरियां और होंठों की सर्जरी, बोले बोले बोले, फिर चेहरे की सर्जरी, गालों में गड़े बनवाने और बाद में गड़े खत्म करवाने की सर्जरी, लिप फिलर्स और फिलर खत्म करने की सर्जरी, अच्छा कंधों, गर्दन और हंसली में फिलर्स, पूरे जिस्म की लाइपोसक्शन सर्जरी, स्टेम सेल इंजेक्शंस और जिल्द के मुख्तलिफ इलाज शामिल हैं। और जिस तरह अमीर आदमी नहीं अपने घर का कोई ना कोई पोर्शन तब्दील करते रहते, कभी बेडरूम दोबारा ढा के बना लेते, कभी बाथरूम दोबारा से नया बनाते, कभी टीवी लॉन्च के पर्दे तब्दील कर लेते, कभी उनको बेचारों को अपना लॉन नहीं अच्छा लगता। ए माई ते तौबा इस्तगफार। भैन जी गल सुनो जी, बीबी आपको अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी अच्छा नहीं था लगता? ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਨਾ ਸਿਰ ਮਨਾਈ। ओ भाई, ये अभी भी अपनी शक्ल में कुछ चीजें बदलना चाहती है। वाह 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 वाह, नक लुआ के ना ते टूटी लुआ लो, ਕੰਨ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਲਓ। हो सकता है। ਬਸ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਚੂਸਨੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇਈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਣ ਡਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜੀ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਕ ਦਬਾਓ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲ ਦੀ ਤਾੜੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ? ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ। दफा स्टूपिड। ओ भाई, इस बेचारी ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है।
पर पूरी दुनिया में यह मामला बड़ी तेजी से फैल रहा है। हाँ जी। आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक सर्जरी की मार्केट का तखमीना 15 से 20 अरब रुपए सालाना है जी, और ये 30% सालाना की शरह से बढ़ रहा है। 15 से 20 अरब रुपए पाकिस्तान में जी। क्या फायदा पाकिस्तानियों को अरबों रुपए खर्चने का। मुझे तो फिर भी कोई फवाद खान नहीं कह रहा। नहीं गौरी, ये अरबां तो होते दी गल है। फवाद खान तो क्या, मैं तुम्हें हानिया आमिर बना दूंगा। बहुत अच्छे। आ जेड़ी 400 वाली तुहाडे क्लिनिक च आई है, ਉਹ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ लगन ਡਈ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਨੀਆਂ ਆਮਰ बनान रहे हैं। भाई दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी की मार्केट का तखमीना 80 अरब डॉलर लगाया गया है, जबकि प्लास्टिक सर्जरी की मार्केट 65 अरब डॉलर तक तकरीबन पहुंच चुकी है। अच्छा। जी बहुत पैसा लेते हैं ये लोग और खवातीन खर्च कर रही हैं। हाँ जी। मैंने सुना है कि फेस लिफ्ट कराने के लिए ना जी बाहर के ममालिक में जी जी। 15 से 45 हजार पाउंड तक लेते हैं डॉक्टर। मगर ये तुर्की और चंद दूसरे मिडल ईस्ट ममालिक जो हैं वहां पे ये 5000 पाउंड तक मरम्मत हो जाती है। हाय। यानी इंसान अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर रहा, मुतमईन ही नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल। देखो ना जरा आपा हो रहा 400 वाली सर्जरियां करा के भी राजनपुर दी बकरी लगन डे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्वीन लग रही हूँ, क्वीन। बस इसी तरह की हलाशेरी दे दे के ओदा नास मारी जा। हाय। मैं तो हैरान होता हूँ, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हाँ जी सर। ऐसी आपको बेशुमार खवातीन मिलती हैं जिन्होंने जी सर्जरी कराई है, फेस लिफ्ट कराया है। बिल्कुल। और वो इन्ने पैसे लाने के बावजूद चाइना की सब्जी का मुंह बना ले। अजीजी साहब, मैं भी अपने चेहरे को फेस लिफ्ट करवा लूं? आप फेस लिफ्ट ना करवाएं, आप मैदा लिफ्ट करवाएं। यार वैसे एक इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। बोलो बोलो बोलो। मैं अगर अपना चेहरा हुमायूं सईद जैसा बनवाना चाहूँ तो कितना को खर्चा आ जाएगा? यार मुजफ्फर क्यों खर्चा कर रहे हो इतना? नहर से छाल मार, फुल के हुमायूं सईद जिद्दा तो हो ही जाएगा। वो कुछ खुदा को खौफ करो यार। देखे ना जरा, कोई शख्स भी अपने आप से मुतमईन ही नहीं है। हाय। हर बंदे को दूसरे का चेहरा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। मुझे देख ले, मुझे पता है कि आई एम ए ब्यूटीफुल मैन, ओह। मगर मेरे ज़हन में फंसा हुआ है कि यार अगर मेरा चेहरा फहद मुस्तफा जैसा बन जाए तो क्या बात। नामुमकिन, नामुमकिन। अजीजी पैसे जाया जाएंगे। आप मुझसे टाइम ले, मैं ट्राई करूंगा। अल्लाह तेरी खैर करे। तुम्हारे पहले मरीज को देख के तो लगता है कि तुम सर्जन नहीं हो, घुघू कोड़े बनाते हो। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिरन का गोश्त खाने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। उन्हें वाइल्ड लाइफ के दफ्तर के सामने किया कि बंद करा साडा शिकार, ते बंद करा हाँ जरा साडा होटल। अच्छा जी, आपको जिंदगी में कई दफा ना कोई साइन बोर्ड नजर आता है, कोई तहरीर नजर आती है, जी जी। तो उसके जेरे साया या उसके साथ ही कोई उसके बिल्कुल अपोजिट, उस तहरीर के बिल्कुल अपोजिट काम होता हुआ नजर आता है, हाँ जी तो बिल्कुल। आपकी हंसी निकल जाती है। जैसे मुझे याद है कि एक अखबार के दफ्तर में उनकी फोटो लैब में मैंने एक तस्वीर देखी। अच्छा। पता नहीं किस शख्स की खींची हुई वो तस्वीर थी कि घास के अंदर ना जी एक लॉन है, उसके घास के ऊपर एक छोटी सी ऐसे तख्ती लगी हुई है जमीन के अंदर ही। अच्छा। उस पे लिखा हुआ है घास पर चलना मना है। हाँ। उस बोर्ड को फोरग्राउंड में रख के उन्होंने ये तस्वीर खींची हुई थी। सही। दूसरी तरफ से उस वक्त की सारी हुकूमत चलती हुई आ रही है, वाह। वजीर आजम, वजीर आला, सारे लोग ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। तो जो प्लेट लगी हुई है वो लिखा हुआ है घास पर चलना मना मना है, है। और सारी हुकूमत घास पे चलती हुई आ रही है। हाय। इसी तरह कई दफा आपने देखा होगा कि नीचे कूड़े का ढेर लगा होता है, हाँ जी। तो ऊपर लिखा होता है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। मना है, हाँ जी। मुझे असल में ना जी ये ख्याल इसलिए आया बात करने का कि जंग से एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी है, अच्छा। कमाल वीडियो है। हाँ, हाँ। वो वाइल्ड लाइफ का ऑफिस है। अच्छा।
जो जानवरों की देखभाल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए महकमा है हमारे यहाँ, वाइल्ड लाइफ। वो शेरों के पीछे भी भागते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इधर वाइल्ड लाइफ का दफ्तर है अच्छा। और उसके बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी तरफ एक होटल का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है मुर्गाबी, तीतर, बटेर, जंगली कबूतर और हिरन का गोश्त खाने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। उन्हें वाइल्ड लाइफ के दफ्तर के सामने किया कि बंद करा साडा शिकार, ते बंद करा ये साडा होटल। और इस ऑफर में कोई सीजन या दिन मखसूस नहीं है। अच्छा। बल्कि जब दिल चाहे आप जाएं वहां पे और हिरन और तीतर बटेरे खाने के लिए आप वहां तशरीफ रख सकते हैं। लो जी। मतलब दिन मुकर्रर है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। शिकार के लिए इन लोगों ने कोई दिन मुकर्रर किए हुए। जी जी जी। वहां कोई दिन मुकर्रर नहीं है खाने के लिए। जब मर्जी जाओ तो इन्हें जानवरों ने जाके पै जाओ। जिस तरह लाहौर में देसी मुर्गे की कढ़ाई खाने या गुजरांवाला में लोग चिड़े खाने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखो ना, चिड़े बेचारे अब खत्म ही हो गए हैं, मगर तड़ा लोग खा रहे हैं। हाँ। इसी तरह मुझे लगता है कि अब लोग हिरनों के दवाले हो गए। हालांकि अभी चंद दिन पहले मैंने खबरें सुनी थी कि गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ बड़ा तगड़ा ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा। वाइल्ड लाइफ वालों को नई फोर्स भी मिल गई है। वाह। इतने बंदे पकड़ लिए, इतने जानवर, इतने परिंदे बरामद कर लिए। लेकिन ये चंग वाली वीडियो देख के मुझे यूं लग रहा है कि खबरों में और हकीकत में बड़ा डाढ़ा फर्क है। हाँ जी। वो वीडियो भेजने वाले भाई ने ये भी बताया है कि वाइल्ड लाइफ वालों ने 1-2 बार कोशिश भी की है कि वो होटल की फ्लैक्स वहां से हट जाए। अच्छा। ताकि उनकी बिजती खराब तो ना हो। हाँ जी। लेकिन अभी कल तक तो वो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर वो तहरीर भी है। अजीजी, बंदे के हालात अच्छे हो तो फिर वो तीतर बटेर खा सकता है या कोई भी खा सकता है? नहीं, बंदे के तो हालात जैसे भी हों, तीतर बटेर के हालात खराब हों तो फिर आप उसे खा जाते हैं। और खास तौर पे हमारे मुल्क में तितरों बटेरों हिरनों के हालात खराब ही हैं बेचारे। अच्छा, हिरनों के हवाले से मैंने थोड़ी बहुत ही रिसर्च की है तो पता चला है कि वाइल्ड लाइफ वालों ने हिरनों को बचाना तो क्या था, उल्टा उनके दर्जनों हिरन अब तक चोरी हो चुके हैं वाइल्ड लाइफ वालों के। बहुत अच्छे। चंद मोटी मोटी खबरें आपको सुनाना चाह रहा हूं। जी जी जरूर। जुलाई में चंग के वाइल्ड लाइफ पार्क से 3 कीमती काले हिरन चोरी हुए थे। अब काला हिरन जो है वो इतना महंगा है कि इंडिया के फिल्म स्टार सलमान खान पे उसका केस हुआ है और उसकी जान नहीं छूट रही बेचारे। अच्छा, अब हिरन जो हैं वो वाइल्ड लाइफ के 3 चोरी हुए हैं। अच्छा। इतला ये दी जाती है मखसूस यराए के मुताबिक कि 4 हिरन चोरी हुए थे, लेकिन महकमे ने 3 काले हिरनों के मुतल्लक रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई। लेकिन वो जो 3 हैं वो भी अभी तक मिले नहीं है। अच्छा। ना इनको पकड़ सका है, पता नहीं किधर गए। अच्छा, इससे पहले विहाड़ी के चिड़ियाघर से महकमा वाइल्ड लाइफ की इंतजामिया और मुलाजमीन की मुबैना गफलत के बायस 6 कीमती काले हिरन जो हैं वो चोरी हो गए थे। इस वारदात का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो बेचारे 6 हिरन जेड़े सन वो किधर गए ने, और बड़े कीमती हिरन। अजीजी, ये जो काले हिरन बार बार चोरी हो रहे हैं, मेरा ख्याल इनको उस वक्त कहना नहीं आता कि बचाओ बचाओ बचाओ। मैं काले हिरनों की बात कर रहा हूँ, फिल्मी हीरोइनों की बात नहीं हो रही। वैसे अजीजी, काला हिरन लजीज बड़ा होता है। लो जी, जेड़े 4 चोरी होए ना वो ये नहीं कीते जी। पुलिस पुलिस चोर पुलिस। ओ भाई, मैं सिर्फ पूछे ये। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन पूछने वाले नहीं खा चुकने वाले थे। लजीज बड़ा होता है, ऐसा खाऊ आदमी है ये गोगा। मैंने इसे बताया कि मेरे एक दोस्त ने हिरन हलाल किया था। अच्छा। कहता है उन्होंने कहना सी सिरी पावे मैनू दे देवे। जब पिछले साल वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लो जो है हमारा जल्लो पार्क जी, वहां से 7 कीमती और नायाब काले हिरन चोरी हो गए। अब देखें कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हुक्मरान बैठे हुए हैं,
अब कहीं 6 काले हिरन, कहीं 4 चोरी हो गए। ये 7 कीमती नायाब काले हिरन चोरी हुए थे हाँ जी। ये जलो वाले पार्क से। जी बाद में 3 हिरन तो पार्क के करीब से ही खेतों से मिल गए थे, मिल गया जी। मगर 4 हिरनों का अभी तक कोई सुराग नहीं कुछ लगा। पता नहीं। फिर लाहौर जो जू सफारी है हाँ जी, हाँ जी। उसके नायाब नस्ल के 4 हिरन चोरी हुए, अच्छा। उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब मुल्तान में बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में वाकया बायो पार्क से 4 हिरनों को चोरी कर लिया गया। लो 2 मादा और 2 नर थे, हाँ। यानी 2 जोड़े लेके को नस गया। भाग गया। यूनिवर्सिटी के बायो पार्क में कुल 8 हिरन थे, जिनमें से अब 4 चोरी हो गए हुए हैं। अच्छा ये चंद दिन पहले की बात है। जी जी। अच्छा, अभी पहले जो 4 हिरन चोरी हुए थे हाँ जी। उनका मामला हल नहीं हुआ, बरामद नहीं किए गए, हाँ। तो जेडे बाकी 4 सन वो भी चोरी हो गए। और सुनाओ, ऐसी दलेराना जो हरकतें हैं ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही होती तौबा। भाई। एक तरफ अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा वाकया पेश आया तो फौरन अलर्ट हो। हाँ जी बिल्कुल। महकमा वाइल्ड लाइफ एक बहुत बड़ा महकमा बहुत है, बड़ा। वो जाहिर है उसका अरबों का बजट तो कम से कम होगा ही। हाँ जी सर। तो वो क्या कर रहे हैं उधर बैठ के? एक माहिर हैवानात हैं कमरुज़्ज़मा, जी। उन्होंने कस्तूरी हिरन पर स्पेशलाइजेशन कर रखी है अच्छा। और कस्तूरी हिरन पर उनके कई तहकीकाती मुकाले भी शाया हो चुके हैं। अच्छा जी। कमरुज़्ज़मा साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में कस्तूरी हिरन की तादाद बहुत कम हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो अपना जरिया मुआशी कस्तूरी हिरन को मारकर उसकी कस्तूरी को हासिल करने को बना लिया हुआ है। क्योंकि कस्तूरी जो है वो सोने से भी महंगी फरोख्त होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये दुनिया की महंगी तरीन खुशबू है, जी हाँ, वाह महंगा तरीन परफ्यूम है ये जो कस्तूरी है। कस्तूरी है। वाह। ये हिरन के पेट से निकलता है। जी जी। और ये जो परफ्यूम होते हैं ये तैयार करने में इस्तेमाल होती है। इसकी खुशबू ही कमाल है। वाह। इसीलिए पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा गैर कानूनी शिकार और खरीदो फरोख्त जो है ना जी, वो कस्तूरी हिरन की ही होती है। हाँ जी बिल्कुल मैं सही। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मुजफ्फर इंसान बन गया है। अगर ये बेचारा भी हिरन बन जाता तो इसको तो किसी ने उठा के तो थैले में डाल के ले जाना था। हाँ, इसने कस्तूरी हिरन नहीं बनना था, इसने मजबूरी हिरन बनना था। हाय हाय, मजबूरी हिरन। इसको अगर कोई चोरी करने आता तो ये शायद उसका तरला भी डालता कि भाई जी मैं मजबूरी हिरन हूँ, हाय। मजबूरी की वजह से हिरन बना हुआ हूं, वरना मेरा ना ते चिड़िया वाली लिस्ट च लिखे ऐसी। यार आपको शायद मालूम नहीं है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में 0 साइज को कितना लाइक किया जाता है। ओह। 0 साइज को लाइक किया जाता है, -0 को नहीं किया जाता। अमान से मैं तो कई दफा ये सोच के तो घबरा जाता हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे माफ कर दे यार। इस बेचारे के ऊपर को मच्छर बैठ जाता होगा तो इसकी क्या हालत होती होगी। मच्छर लड़ना तो चलो दूर की बात है, इसके ऊपर बैठ जाता होगा तो इसके पसीने छूट जाते होंगे। अजीजी मुजफ्फर ने तो बर्गर खरीदना हो तो साथ मजदूर लेके जाता है घर तक। हाँ जी, एक दफा किसी दुश्मन ने इसको डबल टिक्की वाला बर्गर दे दिया था। फिर एक मजदूर भी घट पै गया। फिर बेचारा वापस आया, दूजा मजदूर लैके गया। उन्नी देर में बर्गर ठंडा हो गया। और आपको पता है कि डबल टिक्की वाला बर्गर ये हाथ में पकड़ के नहीं खाता, वो प्लेट में रख के नीचे क्लीन पे रख लेता है और लेट के खाता है। मैं तो ये सोचता हूँ मुजफ्फर, जब तुम्हें लड़की वाले देखने आए थे तो देख के उन्होंने क्या कहा था? बस मुंह ते हाथ रख के हसन लग पे सन। भाई जी खुशी से पागल हो गए थे कि हमें इतना स्मार्ट लड़का मिल गया। वाह रे वाह, को मेरा ख्याल है कुछ दरवेश फैमिली थी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।